Clear out? Done? हो गया ये नोट? So two solutions, failing solution A and failing solution B, they are mixed in equal amounts to obtain. So write down failing solution A and failing solution B will be mixed in equal amounts, या are mixed in equal amounts, are mixed in equal amounts to prepare the failing solution. To prepare the failing solution. Right? Now let us see the chemistry of the test. This is an aldehyde. The copper ions come from plus OH negative ions come from the alkaline part because it is alkaline copper sulfate. And ये heated over a water bath, आपका जो aldehyde है that will get oxidized to carboxylic acid and this will go into cuprous oxide ये तो किसकी ऑक्सीडेशन हुई यहाँ पे aldehyde and what got reduced copper from +2 changes to cuprous that is +1 so इसकी अगर reduction हुई then the aldehyde gets oxidized and same reaction if you carry out तुमने ये पूरे का पूरा लिखना है ये got it am I understood here so do aldehydes reduce failing solution do aldehydes reduce failing solution yes because अगर failing solution aldehydes को oxidize कर रहा है तो aldehyde failing solution को whereas ketones as they are not oxidized by the failing solution so the ketones they do not reduce as a result there is no appearance of so this can also be used to distinguish between aldehydes and ketones yes any question anybody has there should be a question yes please अब आप देखो failing solution was made up of two solutions failing solution A अब आप देखोगे टेस्ट के अंदर जो दोनों के दोनों कंपोनेंट है दे आर ऑफ failing solution A only alkaline copper sulfate the copper ions have come from the copper sulfate and the alkaline से आया OH negative ion so what is the use of the failing solution B तो as such मुझे अभी तक failing solution B का कोई रोल क्लियर नहीं हुआ है यहां पर but definitely it has a role ठीक है पहले इसको नोट करो
ये नहीं कर हो गया? ओके, लिखना यूज ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन बी, यूज ऑफ द फैलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, अब सुनो, कॉपर सल्फेट विल कंटेन कॉपर आयंस एंड आई एम मेकिंग इट एल्केलाइन, तो इसमें बेस ऐड करूंगा और बेस से जो OH नेगेटिव आयंस आएंगे दे विल, बताओ क्या हुआ ये, बट आई नीड कॉपर आयंस फ्री इन द सोल्यूशन बिकॉज आप रिएक्शन देखो उसमें कॉपर आयंस यूज हो रहे हैं। बट अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर बेस डालता हूं, उसको एल्केलाइन करता हूं, द हाइड्रोक्साइड आयन प्रेसिपिटेट्स द कॉपर आयंस, as a result the copper ions do not remain free in the solution. So here comes the role of tartarate. Now what this tartrate ion will do is it will form what? It forms a water soluble complex with the copper ions, and because of that copper ions do not get precipitated out, और ये कॉम्प्लेक्स आपको पता है कभी भी आयोनाइज कर जाएगा टू गिव यू द copper ions. Am I understood? So this tartrate ion does not let hydroxide ions combine with copper ions, because अगर hydroxide ion combine कर गए तो बन गया precipitate. Precipitate तो settle down कर जाएगा. As a result, there are no ions in the solution. This will form a complex. अब देखो, chloride या opposite करते हैं. Sodium forms a water soluble complex with chloride ions. Whereas Ag positive of water insoluble complex with the, तो अगर मुझे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन चाहिए, will I be preferably using NaCl or AgCl? NaCl, because NaCl water में dissociate करेगा, will give me back Na positive ion, and जबकि AgCl will not give me the chloride ions. Same is the case here. If you need copper 2 positive ions, तो आप चाहते हो कि हाइड्रोक्साइड उसके साथ कंबाइन ना करे, बट आपको बेसिक मीडियम भी चाहिए है. द प्रॉब्लम इज आई रिक्वायर द बेसिक मीडियम. वो बेसिक मीडियम कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को क्या कर रहा है? प्रेसिपिटेट आउट. यू नीड दिस ऑल्सो, you need this also, but you don't want these two combining. This will do the work. So this will form a stronger and soluble complex with copper ions like Na and Cl form NaCl. जब जरूरत पड़ती है they get separated out. उसी तरीके से copper 2 positive ion and tartrate, they form a soluble complex, and when the copper ions are required you will get them.
Am I understood? ठीक है. So write down the tartrate ion. Tartrate ion forms a water soluble complex with copper 2 positive ions, hence preventing the precipitation of cupric ions, by the hydroxide ions. Hence preventing the precipitation of cupric ions by the hydroxide ions. Please go through the language. Do you get it? So, for the Fehling solution, do I require the basic medium? Yes. अब रिएक्शन में देखो 5OH नेगेटिव आयंस यूज हो रहे हैं. What is the harm of using basic medium? Because यही basic medium copper 2 positive ions को क्या कर रहा है? मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी सेपरेट चाहिए और ये भी सेपरेट चाहिए, बट जब ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं दे प्रेसिपिटेट आउट. तो मुझे इन दोनों के बीच में कुछ लाना पड़ेगा. That work is done by the tartrate ion, which form a stable and stronger complex with copper 2 positive ions. And the best part, that complex is it will give me back the copper 2 positive ions whenever I require them. Because मैंने बोला है आपको टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट आपने लैब में करने हैं. These questions are to be there in the viva also. So पहला फेलिंग सॉल्यूशन क्या है सबको पता है? Made up of Fehling solution A and out of the two, which is directly involved in the reaction? Fehling solution. उसके दोनों components directly involved है. But Fehling solution is B is working behind the scene. उसका direct involvement नजर नहीं आ रहा है. What it is helping us keeping the copper 2 positive ions in the solution. Clear? स्टार मार्क करके लिखो. aromatic aldehydes are not oxidized by Fehling solution. Aromatic aldehydes are not oxidized by Fehling solution. Only aliphatic aldehydes are oxidized. Aromatic aldehydes are not oxidized by the Fehling solution. Only aliphatic aldehydes are. Clear? Take a minute on it. एरोमेटिक एल्डिहाइड इसलिए नहीं ऑक्सीडाइज होते कि जो फेलिंग सोल्यूशन है दैट इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस रिएजेंट. मतलब ये वीक है, ये एरोमेटिक को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता. लिखा क्वेश्चन एक. गिव अ केमिकल टेस्ट to distinguish between formaldehyde and benzaldehyde. Give a chemical test to distinguish between formaldehyde and benzaldehyde. बता रहा. Will Fehling test work here? Because formaldehyde is an aliphatic aldehyde and benzaldehyde is. लिखो आंसर. Fehling's test
लिखना formaldehyde will give a blood red PPT, will give a blood red PPT in the Fehling test, whereas benzaldehyde will not. Whereas benzaldehyde will not. Clear? Can Fehling test be used to distinguish between aldehyde and ketone? Aldehyde and ketone. Yes. Fehling और टॉलेंस दोनों यूज हो सकते हैं आपको. They are only oxidizing aldehydes only. But between an aliphatic and aromatic, tolerance will not work. Between an aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde, tolerance टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, वो तो दोनों ऑक्सीडाइज कर देता है. Whereas it is only Fehling. लिखो थर्ड, Benedict solution. Benedict solution, again it is made up of alkaline copper sulfate plus, in place of tartrate ions, it contains, सब कुछ सेम है. जैसे Fehling solution के अंदर दो कंपोनेंट थे, it also has two components A and B. alkaline copper sulfate सेम, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट की जगह क्या आ गया? सिट्रेट, सिट्रिक एसिड. ठीक है. एंड ये बता रहा हूं जस्ट फॉर द रेफरेंस, दिस आयन इज सिट्रेट आयन. एंड देखो टेस्ट की, सेम Benedict solution with an aldehyde will form a blood red PPT. सब सेम है. Only difference between the Fehling solution and Benedict solution is citrate ion भी वही काम कर रहे हैं. They are preventing the precipitation of cupric ions, like tartarate ion was doing there. Rest all is same. NCERT का part नहीं है, but just because it is there, I discussed a bit. So chemistry of Fehling test and the Benedict test is the same. So we can't distinguish. No. तो Fehling टेस्ट अगर करना है तो आपके पास दो चॉइसेस है. It should be aldehyde versus ketone or an aliphatic aldehyde versus aromatic aldehyde. ये डन है. ये है क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ये तीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है which work only for, yes, what is the role of क्या बोला? Fehling क्या रोल? ये एल्डिहाइड है, ये तेरे क्यूप्रिक आयंस, ये 5OH नेगेटिव आयंस, they formed RCOH. ये क्या है? एल्केलाइन कॉपर सल्फेट. तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन Fehling solution A से आए. Alkaline means this hydroxide ions also come from the alkaline copper sulfate, right? Done है. अब लिखो next, oxidation with sodium
hypoiodide. Oxidation with sodium hypoiodide. फोर्थ ऑक्सीडेशन है ये, मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन विद सोडियम hypoiodide. Right? Okay. And this forms basis for a test called as iodoform test. The iodoform reaction. ठीक है, अब सुना, अभी टेस्ट नहीं बता रहा हूं. The aldehydes and ketones which contain a methyl group attached to the carbonyl carbon give iodoform test. ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है. अगर कार्बोनिल ग्रुप पे एक ग्रुप मिथाइल लगा है, then this will give iodoform test. So we said all methyl ketones. यहां पे H भी हो सकता है, यहां पे बेंजीन रिंग भी, यहां साइक्लिक, इट कैन बी एनीथिंग हियर. व्हाट आपके कार्बोनिल कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. ठीक है. So this category of compounds has a common name called as methyl ketones. Because एक ही एल्डिहाइड है जो टेस्ट देगा एसिटाल्डिहाइड. बिकॉज यहां पर H लगा तो एल्डिहाइड, और उसके बाद जब यहां पर कार्बन चेन लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ये तो वैसे कीटोन बन जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वी से इज एसिटाल्डिहाइड and all two-ons give iodoform test. अच्छी तरह देख लेना पहले इसको, बताना. Will this give iodoform test? C डबल बॉन्ड O के साथ देखो, ये CH3 है ना, एक तरफ CH3 चाहिए मुझे, और दूसरी तरफ चाहे आप 50 कार्बन की चेन लगा दो, डजंट मैटर. देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ, अब बताओ, विल इट गिव iodoform टेस्ट? नो, बिकॉज C डबल बॉन्ड ओके इधर इथाइल है, 1 2 3 4 5 इधर पेंटाइल है. दिस विल नॉट गिव. ओके और नॉट? टू ओन्स, ऑल टू ओन्स. अभी ये बता रहा हूं मैं. Is it pentane 2-on? 1 2 3 4 5. Will it give the iodoform test? Will it give iodoform test? Yes. 1 2 3 4 5 6 7. It is heptane 2-on. Any 2-on will give, because जब 2-on है इसका मतलब है C double bond is attached to the second carbon. इसका मतलब उसके पहले एक कार्बन है. एक कार्बन means methyl group. Clear? Will formaldehyde give iodoform test? No methyl group. Will benzaldehyde give iodoform test? Will acidophenone give iodoform test? Yes. I hope I am clear with this. करो ये नोट, लाइन लिखो. Aldehydes and ketones, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones in which a methyl group, in which a methyl group is attached to the carbonyl carbon
in which a methyl group is attached to the carbonyl carbon, give iodoform test. Give iodoform test. Right? So ये ग्रुप होना चाहिए. We call it as methyl ketones and I have given you heading. क्या आ गया? Acetaldehyde and all two ons give us a test which is called as iodoform test. ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट यूज करेंगे वो ये है और टेस्ट का नाम बनेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट. ये हटा दूं. Now let us see the chemistry of the test. CH3 ये does it give the iodoform test? Yes. पक्का. अब देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो there should be a use of the word iodoform. आयोडोफॉर्म टेस्ट में एरो के ऊपर आपको याद हो लिखेगा NaOH plus I2 or there could be written NaOI. This is the compound which we call as sodium hypoiodite और Na पॉजिटिव हट जाएगा तो यही चीज बच जाएगी. इन तीनों में से एरो के ऊपर कोई भी लिखा जाना शुड बी कॉल्ड एज. क्लियर है? ठीक है. अब फॉर गिविंग आयोडोफॉर्म टेस्ट व्हाट वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट? ये ग्रुप. तो इसका कुछ रिएक्शन में पार्ट होगा ना. तो अगर आपके एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है? मिथाइल ग्रुप in presence of sodium hypoiodite, this methyl group will get oxidized to iodoform. And this iodoform is a right. और जो बाकी हुआ पार्ट है वो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा. यानी कि आपका कंपाउंड यहां से ब्रेकअप हुआ. This part gets into iodoform and rest goes into C2H5 clear. हाँ जी. जो मिथाइल पार्ट है जिसके बेसिस पे ये टेस्ट खड़ा है, that methyl test will change to, that methyl group will change to आयोडोफॉर्म. येलो बीबीडी बना और उसको छोड़ के बाकी जो कंपाउंड बचा है, बाकी जो पार्ट बचा है वो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. राइट. सो अब ये देखना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. हाँ ठीक है. विद द सेम रिएजेंट आई होप आई एम क्लियर. इस कंपाउंड के अंदर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है तो इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दिया. गॉट इट? सो पहले सुन लो सारी बातें. एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, विच टेस्ट? एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, विच आर द टू टेस्ट? रेदर आई हैव थ्री टेस्ट, टॉलेंस, बेनेडिक्ट एंड what if it is an aldehyde versus aldehyde and a ketone versus ketone? So aldehyde ketones में जब बाकी टेस्ट खत्म हो जाते हैं starts. तो जब फैलिंग खत्म हो गया, aldehyde ketone फैलिंग वर्क्स. ठीक है. what aldehyde versus aldehyde, ketone versus ketone, आपका aldehyde वर्क नहीं करेगा. दिस इज द टेस्ट. याद है ने अल्कोहल्स में भी छोटा सा मेंशन किया था इसका. सो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी अल्कोहल, विच टेस्ट? एक प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टेस्ट?
Let her. Lucas test. 2 degree versus 3 degree. Lucas test. 1 degree versus 3 degree. What if it is 1 degree versus 1 degree? 2 degree versus 2 degree. So that's why in chemistry, जब बाकी टेस्ट खत्म हो जाएंगे, the grand entry of a test comes called as. करो इसको नोट. हो गया? आज भी आउट करवा दिया तुमने. वेरी बैड. दोनों की सेंचुरी मिस हो गई. है 276 for 4. स्पीच से क्या करना था? हो गया ये है. CH3 आयोडोफॉर्म इज CHI3. CH3 आई तो आयोडोमीथेन है. क्लोरोफॉर्म क्या है? CH3Cl की CHCl3. जो ये वाले कंपाउंड है CHX3, दे आर कॉल्ड एज हेलोफॉर्म. हेलोफॉर्म, कई बार इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं. इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट. मतलब वी आर टेकिंग जनरली एनी हेलोजन, बट प्रेफरेबली हेलोजन इज ऑलवेज iodine. And iodoform is used as an antiseptic also. If you get some injury, etc., it is also used as an antiseptic. Clear? Likhो question. Give a chemical test. Iodoform. Triiodomethane. That is the chemical name. Otherwise, इसका नाम ये है. ये जो CHX3 is called as हेलोफॉर्म. जो हेलोजन आता जाएगा उसकी फॉर्म आती जाएगी. If it is Br here, bromoform. If it is chlorine here 3 times, chloroform. If it is iodine here 3 times like this, it is iodoform. तभी तो इस टेस्ट का नाम आयोडोफॉर्म टेस्ट है, बिकॉज इसमें आयोडोफॉर्म बन रहा है. और आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट है जो हेल्प करेगा हमें आइडेंटिफाई करने में. क्लियर? लिखो. गिव अ केमिकल टेस्ट. Give a chemical test to distinguish between first acetaldehyde and formaldehyde. First is acetaldehyde and formaldehyde. Second, acetaldehyde and benzaldehyde. Second, acetaldehyde and benzaldehyde. Third, pentane 2-one and pentane 3-one. Fourth, third is pentane 2-one and pentane 3-one. Fourth, acetophenone and benzophenone. Acetophenone and benzophenone. देखना क्या चारों का आंसर आयोडोफॉर्म टेस्ट है. चेकआउट. दोनों में से जो आयोडोफॉर्म टेस्ट डालेगा उसके ऊपर टिक करो. चारों का आंसर आयोडोफॉर्म टेस्ट है. नहीं कहा हुआ?
स्ट्रक्चर बनाओ इनके। बना लो बना लो। बाद में या समझा दो, करा देंगे, पहले ये खत्म करो, पहले +2 कर लो। है फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट वन इज acetaldehyde एंड बताओ क्या यहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट काम करेगा? विल द सिल्वर मिरर टेस्ट वर्क? दोनों ही एल्डिहाइड है। फैलिंग दोनों ही एल्डिहाइड है। वेनेडिक्स, और आपको जब दोनों ही एल्डिहाइड है तो सीधा आइडोफॉर्म लिख रहे हैं आंसर। दोनों में से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिकॉज आई सी अ मिथाइल और ओनली वन एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट इज एसिटाल्डिहाइड। लिखो आंसर। लिखना कैसे है? आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट है। लिखना एसिटाल्डिहाइड, क्या हुआ? सिर्दर्द मैंने किया? लिखो एसिटाल्डिहाइड इन आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये पेपर में ऐसे लिखना है, वहां पर सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख के मत आ जाना। एसिटाल्डिहाइड in iodoform test will form a yellow PPT, whereas formaldehyde will not. Acetaldehyde in iodoform test will form a yellow PPT, whereas formaldehyde will not. ठीक है? पेपर पे क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश करने आएगा, इतना ही लिखना है जितना मैंने बोला है। प्लीज डोंट स्टार्ट राइटिंग द रिएक्शंस, बिकॉज इस बार एक बच्चे के हमने पेपर चेक किया, 70 मार्क्स थे, 69 स्कोर किया उसने। ही कुड हैव स्कोर्ड 70 अगर उसने यहां पे टेस्ट का। अब उसने क्या किया ये देखना, सेम क्वेश्चन आइडोफॉर्म टेस्ट उसने लिखा। He said acetaldehyde will form a yellow PPT. He was correct. What he did is इसका रिएक्शन लिखा उसने, और रिएक्शन में उसने ये चीज लिखी, in place of iodoform he write it as CH3I which is iodo methane. अब बच्चे ने एक टेस्ट ठीक लिखा हुआ है, he deserves 1 mark, but because it was a case of 70 on 70 this could not be ignored. तो यहां पे 1 मार्क कटा, जस्ट बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग रिएक्शन विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड अदरवाइज। सो केमिकल टेस्ट में अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश नहीं करनी है प्लीज। नंबर आपको 1 ही मिलना है, जितना मैंने लिखाया उससे भी 1 मिलना है। अगर उसके साथ आप रिएक्शन ऐड करोगे तो भी 1 मिलना है, पर रिएक्शन गलत होने से नंबर घट सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड इट। बस सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा। सेकंड क्या है? एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड विल गिव। अब एक और चीज बताता हूं, सुनना। सपोज आपको ये पता है कि आंसर आइडोफॉर्म टेस्ट है, और आपको कलर ऑफ प्रेसिपिटेट पता नहीं है कौन सा है। अब देखना कैसे लिखा आपने, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। जस्ट एवरीबॉडी लिसन्स,
You will write acetaldehyde will give a positive iodoform test and benzaldehyde will not. अगर आपको ये पता नहीं कि प्रेसिपिटेट का कलर क्या है तो आपने पॉजिटिव टेस्ट बोल दिया तो इसका मतलब है कि व्हाट एवर हैपेंस इन द iodoform test that will happen. Clear? थर्ड क्या है? Acetone and pentane 2 on and pentane 3 on. What's the answer? Will give a positive iodoform test. Yeah, will form a yellow PBD. Pentane 3 on will not. Fourth, acetophenone and benzophenone. What's the answer? Aceto. हाँ. इस वाले में अगर हमने acetaldehyde give positive iodoform test and benzaldehyde give negative iodoform test चलेगा. Quiet. Acetaldehyde and यहां पर फैलिंग भी यूज कर सकते हो. That's what you want to ask? Yes. यहां पे फैलिंग भी यूज कर सकते हो. पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट benzaldehyde does not. यहां बोलोगे acetaldehyde in failing test will form a blood red PBD. Benzaldehyde will not. बेंजोफिनोल में 2 बेंजीन रिंग्स. ये बेंजोफिनोन है. ओके. एक क्वेश्चन लिखो. An organic compound A. An organic compound A means capital A. An organic compound capital A. CAPITL मत लिख लेना. An organic compound A ब्रैकेट में C4 C4H9O. C4H9O forms a colored PPT with 2,4-DNP. Forms a colored PPT with 2,4-DNP. Second, next line. A does not reduce Tollens reagent. Does not reduce Tollens reagent. What gives a positive iodoform test? Identify A and write the reaction involved. नीरज सो रहा है. ऐसी नींद आ जाती है. Identify A and write the reactions involved. अपने आप करो. क्वेश्चन पढ़ ले पहले.
कर दिया एक कितना तो पता है, एक ही टोन है, है? एक ही टोन है बट ठीक है ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आगे जाके करने हैं, तो जस्ट मैं बिकॉज थोड़ा सा हुआ है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल। सुनो पहले, कंपाउंड ए with 2,4-DNP gives a colored precipitate. What inference do I draw from here? It's a carbonyl compound. ना ये अल्कोहल है, ना ये फिनोल है, ना ये हेलो एल्कीन है, बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है 2,4-DNP. इट मींस ए इज एन carbonyl compound, right? Then A does not reduce Tollens reagent. It means it's a ketone, right? A gives iodoform test. That means it is a 2-on, or I will say it's a methyl ketone. पहले सुन लो फिर बोल लेना. What step by step every sentence is giving me information. A2,4-DNP colored precipitate बता रहा है, इसका मतलब वो कार्बोनिल है, either an aldehyde or a ketone. उसने टॉलेंस रिएजेंट पे वर्क नहीं किया, इट मींस इट इज कीटोन. फिर अब मुझे कीटोन का पता चल चुका है. देन ही सेड इट गिव्स एन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. इट मींस इट कंटेन्स अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल. अब आपको पता है 4 कार्बन का कीटोन है, ये बनाया, राइट? एंड एज इट इज अ मिथाइल कीटोन, इट मींस इट हैज टू बी अ 2-on. रेस्ट इज द हाइड्रोजन्स. है कर लो. C4H8. आप बताओ कोई क्वेश्चन है तो. क्या पूछ रहा था? हाइड्रोजन के बारे में. हाइड्रोजन की टेंशन छोड़ के बताओ, कुछ पता लगा? अब आगे जाके इसके रिएक्शन भी लिखने पड़ेंगे, बट वो आगे जाके करेंगे. आज जस्ट आपको आइडिया दिया है कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस तरीको उस ऐसे समराइज होंगी चीजें. यस, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इससे रिलेटेड, और जिस दिन मैंने ये क्वेश्चन करने, आई विल बी कीपिंग अप एन ऑनलाइन क्लास फॉर दैट. जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, बिकॉज वो क्वेश्चंस मुझे यहां पर डिक्टेट कराने और दोबारा लिखने, तो आई विल बी शोइंग ऑन द स्क्रीन एंड वी विल प्रैक्टिस देम. ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सुनो, अभी तक हमने कौन कौन से रिएक्शंस कर लिए. सबसे पहले स्टार्ट करो एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी. सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय, जिसमें आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2,4-DNP का पिछली क्लास में. एंड थर्ड वी स्टार्टेड विद ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में 4 किए हमने. 3 जिसने सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज किया, और चौथा जिसने एल्डिहाइड और लिखना नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली. ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली. लिखना ketones are oxidized only under drastic conditions. Ketones are oxidized
only under drastic conditions, ब्रैकेट में एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये हमने पहले भी किया हुआ है, क्या होना है, लिखे हुआ है, लिखा हुआ है। सो बताओ, हाउ डू आई ऑक्सीडाइज दिस कीटोन? क्या रूल था? ओके, अब सुनो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन ब्रेकअप दिस एज वेल एज। अब बताओ, ये जो कीटोन है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो अनसिमेट्रिकल कीटोन की जब ऑक्सीडेशन करनी है, this rule to be kept in mind at the site of the cleavage is this. So सुना, Popov's rule says, कौन सा रूल? दोबारा से एक बार, आज घर जाके यही कर रहे हैं। So the rule says during oxidation of unsymmetrical ketones, the carbon carbon bond breaks up in such a way that the carbonyl group remains with the smaller alkyl group. आपने कार्बन बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाए। अब आप देखो, अगर ये यहां से टूटता है, कार्बोनिल गोज विद द लार्जर अल्काइल ग्रुप, सो दिस साइड ऑफ क्लीवेज इज नॉट पॉसिबल, द साइड ऑफ क्लीवेज विल बी दिस। अब ये देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ यहां मर्जी तोड़ लो, बिकॉज इधर से तोड़ेंगे तो भी अल्काइल विल गो विद CH3, सॉरी कार्बोनिल विल गो विद, और यहां से ब्रेकअप करेंगे तो कार्बोनिल विल गो विद। सिमेट्रिकल में नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो एसिडिफाइड, सपोज आई ब्रेक इट फ्रॉम हियर, क्या बना? CH3COH प्लस CO2। एक कार्बन वाला जो ग्रुप है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, बाकी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे इस पार्ट का 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और इस पार्ट का भी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कीटोन की ऑक्सीडेशन पर भी, बट ओनली थिंग इज एल्डिहाइड्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप, जबकि कीटोन्स में, गॉट इट। सो लिखना, कीटोन्स पहले लिख ले, कीटोन्स विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ketones with strong oxidizing agents undergo the cleavage of carbon-carbon bond to form carboxylic acids containing lesser carbons. I don't know what I have said. Ketones with strong oxidizing agents. Ketones with strong oxidizing agents undergo the cleavage of carbon-carbon bond to form carboxylic acids containing lesser number of carbon atoms than the parent ketone, yeah, than the starting ketone.
एक बार समझो, लाइन समझ आती है या मैंने कुछ भी बोल दिया है? देन द स्टार्टिंग कीटोन। देखो, लाइन को देखते रहो, लाइन को सुनते रहो और यहां देखते रहो। कीटोन्स with strong oxidize, just see here, ketones with strong oxidizing agents undergo the cleavage of the carbon-carbon bond to form carboxylic acids carrying lesser number of carbon atoms than the parent ketone. ठीक है? Parent ketone contains how many carbons in total? 5. On oxidation, carbon-carbon bond breaks, carboxylic acid बनेगा, but the number of carbon in the carboxylic acid will be lesser than the starting ketone. Clear? अब ये लिखो, पहले लिख चुके हैं, एक बार दोबारा से लिख लो। पॉपऑफ्स रूल कौन बोलेगा? रोहित क्या बोल रहा है? एनीवन? कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में भी, बस बैठ के गप्पे मारने वाले ही है। कम ऑन। यस है, पहले सोच लो। सुनना, इन एंड तुमने गलतियां निकालनी है, जितनी गलतियां निकालोगे मेरी ओर से प्राइज मिलेगा। हाँ, चलो सुन लो। एक अनसिमेट्रिकल वो कार्बन कार्बन की क्लीवेज होगी, यहाँ पे कार्बोनेट छोटे एल्काइल। Okay, nice attempt. Write down Popoff's rule. During oxidation of an unsymmetrical ketone, during oxidation of an unsymmetrical ketone, carbon-carbon bond breaks up in such a way, the carbon-carbon bond breaks up in such a way that the carbonyl group stays with the smaller alkyl group. The carbonyl group stays with the smaller alkyl group. Pakka. Likho. What is the product of oxidation of heptane threone? What is the product of oxidation of heptane threone? हो गया? Done. Heptane 2-on, sorry, not 3-on. ये राइट है।
तो 3 तो है यार। ये इज इट अ कीटोन? जल्दी से आंसर, इज इट अ कीटोन? विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? विल इट गिव टॉलेंस टेस्ट? विल इट गिव फैलिंग टेस्ट? विल इट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट? विल इट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय acidified potassium dichromate? Yes. So as I oxidize it with acidified, हाँ, ये बताओ ऐसे टूटेगा यहां से ये, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप हैज टू स्टे विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक, 1 2 3 4, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। राइट? पेंटेन 3 ओन, विल पॉप-ऑफ्स रूल बी रिक्वायर्ड? एक बार जल्दी से बना के देखो रफ में। पेंटेन 3 ओन, for the oxidation of pentane 3 on will pop-off rule be required? Because pentane 3 on is ये 1 2 3 4 5 carbonyl group with 2 alkyl group, 2 alkyl group. What will be the oxidation product? बिना लिखे प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। सपोज यहां से ब्रेकअप हुआ, 1 2 3 प्रोपेनोइक और ये 2 कार्बन इथेनोइक, राइट? अब लिखो रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसका? कीटोन की ऑक्सीडेशन 2 तरीके से हो सकती है, एक तो ये और एक वो सोडियम हाइपोहैलाइट, और उससे सिर्फ मिथाइल कीटोन्स की होगी, बाकी और कोई नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी रिग्रेस। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जोर से पता है, बोलो। एल पे खत्म हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोल डालो NaB, ओके दैट्स राइट। और बीच में कुछ ओके, ऑक्सीडेशन टू एल्कोहल्स। बिकॉज ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा की है आज, तो द मेन हेडिंग इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसमें 2 हैं। फर्स्ट इज रिडक्शन टू एल्कोहल्स, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, पहले सुन लो, इसमें आप डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, और यू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यू यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीनों में से कोई भी यूज करो। जस्ट सी हियर, across the carbon oxygen double bond 2 हाइड्रोजन एटम्स will be added। एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा, you will get an
If this is R, this is R, this is you will get a 1 degree alcohol. एक बार पहले मेरी बात सुनना. If you remember oxidation of alcohols, primary alcohol oxidizes to aldehyde oxidizes to. अब backward journey start करो. Carboxylic acid reduces to aldehyde will reduce to. That's what is happening. And out of the three, you can use noted. अगर नोट कर लिया है दोबारा से नोट करो. इस H की जगह R करके दोबारा लिखो पूरा रिएक्शन. सेकेंडरी डिग्री अल्कोहल. ऐसी गलतियां मैं कर सकता हूं पर अच्छा लगा वर्ड सुन के. प्राइमरी डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी डिग्री अल्कोहल. So if this is R, okay, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन. What is formed when following compounds are reacted with sodium borohydride? What is formed when following compounds are reacted with sodium borohydride? Sodium borohydride. First, diethyl ketone. Second, dicyclohexyl ketone. Dicyclohexyl ketone. Third, benzophenone. Fourth, acidophenone. करके जाना है ये. मैंने बोला ना यहाँ पर देखो मैंने पूरा पढ़ दिया. नहीं भाई आप तो आज क्या मत कर गया. ये देख भाई ये धोखेबाज मैंने सोचा था ये महीना हो गया.
नहीं भाई आज मैं हाँ